Good morning students, welcome to your science class. Today we are going to start the second term syllabus and first chapter is chapter number 4, that is common insects. So open your books at chapter number 4, common insects. When you open the books, you will see there's an activity given. Let's warm up. In this activity, you have to write the names of the insects. Pictures are given. You have to write their names. And there's a help box also given. You have to choose the names from the help box and write here. So first picture you see is of a cockroach. So write cockroach over here. Second one is an ant. Third is grasshopper. Fourth is butterfly. Next is ladybird, and the last one is wasp. So write the names of the insects given in the pictures and complete this activity. Now let's read further. Insects are tiny creatures seen crawling and flying around. वी कैन सी इंसेक्ट्स, हम इंसेक्ट्स को अपने घरों में आसानी से देख सकते हैं. दे आर क्रॉलिंग, हमारे फर्श के ऊपर चलते हुए नज़र आ जाते हैं या उड़ते हुए नज़र आते हैं. जैसे कि आंट्स हैं, वो चलती हुई रोड्स के ऊपर या फ्लोर के ऊपर हमें दिख जाती हैं. सेम वे जो मॉस्किटोज़ हैं, दे ऑलवेज फ्लाई, द हाउस फ्लाई ऑल्सो फ्लाई अराउंड. सो वी कैन सी द इंसेक्ट्स अराउंड अस ईजीली. All insects have some things in common. सबकी कुछ common things हैं. That common things we are going to read now. The bodies of all insects are divided into 3 parts: head, thorax and abdomen. So they have 3 parts: head, thorax and abdomen. You can see the picture given on the book where it is clear that which is the head part, which is the thorax part and which is the abdomen part. So there are 3 parts of the insect's body. Insects usually have large eyes on their heads. They have feelers on their heads that help them to find out more about their surroundings. So जो आप सिर के ऊपर देखते हो ना, इंसेक्ट्स के जो एंटीना से होते हैं, they are called the feelers. So these feelers help them to know more about their surroundings. Surroundings में उनके क्या हो रहा है, इन feelers से they can easily judge. There's a fact given. Insects use their feelers to pick up smell and taste. So they can smell and taste with the help of their feelers. Next, all insects have 6 legs. Some insects have 2 pairs of wings. The legs and wings are fixed to the thorax. So, generally insects have 6 legs and कईयों के wings भी होते हैं. They have 2 pairs of wings. Means total there are 4 wings. Like you can see the butterfly picture. It has one pair up at the upside and the 1 pair at the downside. Means 4 wings, and the legs and the wings are attached to the thorax. Everything is attached to their thorax. Insects have tiny holes called spiracles on their abdomen. They breathe through them. Abdomen के ऊपर they have very small holes. They are called spiracles, and these holes help them to breathe through. जिसके थ्रू ये सांस ले सकते हैं. Butterfly, cockroach, these are insects with wings, and ants and head lice, these are insects without wings. जो आपके सिर में कईयों के जुएं पड़ी होती है ना, वो जुएं भी क्या है, एक इंसेक्ट है. नेक्स्ट इज सोशल इंसेक्ट्स. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो सोशल होते हैं. सोशल मीन्स जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन कभी भी अकेला नहीं रह सकता है. इट हैज़ टू हैव सम पीपल अराउंड देम, जिनके साथ वो हंसेगा, खेलेगा, फीलिंग शेयर करेगा. राइट, द सेम वे the insects also have social life. They also live in communities. They also live with other insects. So कुछ ऐसे insects हैं जो social insects हैं. Let's learn about them. Some insects like ants and bees live in colonies. वो अपनी colonies में रहते हैं and they are social and have division of labor. उन्होंने अपना जो काम है वो divide किया हुआ है. कौन सा बंदा क्या काम करेगा, they have already decided.
Now, let's learn about ants first. Ants live in a nest that has a network of tunnels. जो ants का nest होता है, जो ants जहाँ पे रहते हैं उसको भी nest बोलते हैं, and they have lots of tunnels in it. ज़मीन के अंदर ही ants अपना घर बनाती हैं और उस ज़मीन के अंदर they have lots of tunnels. Each nest or colony has a queen ant. एक क्वीन आंट होती है हुज जॉब इज़ टू ले एग्स, जिसका काम क्या है, सिर्फ एग्स ले करना. द वर्कर एंट्स कलेक्ट एंड स्टोर फूड एंड फीड द लार्वा. वर्कर एंट्स का क्या काम है, जो वर्कर हैं दे कलेक्ट द फूड एंड जो लार्वा है, लार्वे मीन्स जो एग में से बच्चे निकले हैं छोटे हैं उनको फीड करना. दैट हैच आउट ऑफ द एग्स. सोल्जर एंट्स प्रोटेक्ट द कॉलोनीज एंड द क्वींस. और सोल्जर एंट्स का काम है कि क्वीन को प्रोटेक्ट करना और उनकी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना है. राइट, सो दिस इज हाउ एंट्स हैव डिविजन ऑफ लेबर. दे हैव अ क्वीन एंट जिसका काम क्या है, सिर्फ एग्स ले करना. देन दे हैव वर्कर एंट जिनका काम है कि खाना कलेक्ट करके लेके आना है और बच्चों को खिलाना है. और जो सोल्जर एंट्स हैं उनका काम है कि उन्होंने कॉलोनी को प्रोटेक्ट करना है और क्वीन एंट को प्रोटेक्ट करना है. Right? Next, bees. Let's learn about bees also. Bees live in a group. Their nest is called a hive. Bees hive देखा हुआ है ना, अपनी छतों पे होता है, पेड़ों पे होता है. So their nest is called a hive that is made up of wax, जो wax से बना हुआ है. Hives have many small cells that are shaped like a hexagon. Hexagon होते हैं जिनकी 6 साइड्स होती हैं. जिस 6 साइड की शेप होती है उसको बोलते हैं हेक्सागन. सो जो बीज हाइव होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं. वो होल्स जो होते हैं वो हेक्सागन की शेप में होते हैं. There is a single queen bee that just lay eggs. The eggs are sealed inside the cells that till they hatch into larvae. So एक ही उनकी क्वीन बी होती है, जैसे कि क्वीन आंट एक होती है वैसी एक क्वीन बी होती है जिसका काम क्या है, एग्स को ले करना. और उन एग्स को तब तक सेल्स के अंदर बंद करके रखा जाता है जब तक कि उसमें से लार्वे नहीं निकल आते, मतलब बेबीज़ नहीं निकल आते. द वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स in the hive. They change this nectar into honey. वर्कर बीज का काम क्या है, नेक्टर कलेक्ट करके लाना, फ्लावर से जूस कलेक्ट करके लाना और उसको फिर हाइव में वो सेव कर देते हैं और हाइव में ऑटोमेटिकली बड़े बड़े वो हनी बन जाता है. द वर्कर बीज कलेक्ट लुक आफ्टर द लार्वे. और वर्कर बीज का काम क्या है, लार्वे को देखना. ठीक है. अ फैक्ट, worker bee keeps the hive cool by fanning in with their wings. तो वो क्या करती हैं, आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हमेशा भिन भिनाती रहती है ना. दे ऑलवेज कीप ऑन फ्लाइंग अराउंड देयर हाइव. सो वाई दे आर डूइंग सो, क्यों आसपास वो फ्लाई करती रहती हैं, इसलिए ताकि उनका हाइव जो है वो गर्म ना हो, वो हमेशा ठंडा रहे. जैसे हम करते हैं ना, हमने किसी चीज़ को ठंडा करना तो हम फूंक मारते हैं, ऐसे हवा देते हैं. द सेम वे फ्लाइज भी अपने हाइव को ऐसे अपने पंखों से हवा देती रहती हैं ताकि वो हाइव ठंडा रहे, गर्म ना हो ज़्यादा. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्लो योर माइंड क्वेश्चन. नेम द इंसेक्ट दैट लुक लाइक अ बी एंड इज येलो इन कलर दैट कैन स्टिंक बैडली. अब आपको ये, दिस इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट जो येलो कलर का होता है, जो हमारे आसपास हम जनरली देखते हैं येलो कलर का होता है और लगता मधुमक्खी के जैसा है, लेकिन वो मधुमक्खी नहीं है. वो हमें डंक भी बहुत ज़ोर से मारता है ना. तो आपको उसका नाम फाइंड आउट करना है. ओके, फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट इंसेक्ट. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, हाउ अ egg changes into a butterfly, that we are going to learn now. Butterflies are amongst the most beautiful insects. सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं because they are very colorful. The eggs hatch into tiny things form like larvae or caterpillars. जो eggs होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, जैसे कीड़े नहीं होते छोटे छोटे, दे चेंज इनटू दैट इज कॉल्ड लार्वे, और हम उसको कैटरपिलर भी बोल देते हैं. द कैटरपिलर स्पेंड्स ऑल इट्स टाइम ईटिंग लीव्स. सिर्फ लीव्स खा के ज़िंदा रहता है कैटरपिलर. इट ग्रोज बिगर एंड फैटर. खा के वो बड़ा होता रहता है और बड़ा बन जाता है. अ फ्यू डेज
After a few days, a caterpillar builds a case around itself called a cocoon. और कुछ दिनों के बाद कैटरपिलर जब बड़ा होता रहता है, कुछ दिनों के बाद इट बिल्ड्स अ केस, मतलब इसके आसपास एक ऐसी सख्त सी परत बननी शुरू हो जाती है जिसको कि हम कुकून बोल देते हैं. इट इज़ मेड फ्रॉम अ थ्रेड दैट कम्स आउट ऑफ द कैटरपिलर्स बॉडी. इसकी बॉडी में से अपने आप ही एक थ्रेड निकलना शुरू हो जाता है जो कि इसकी बॉडी के साथ ही लिपटता जाता है एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कुकून. Then there is a fact also given, moth looks like butterflies but they usually fly at night. They are attached by the bright light. They keep their wings flat. तो मॉथ जो होते हैं, जो रात को उड़ते होते हैं ना, जिसको हम रात को भी तितली बोलते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ बटरफ्लाई, दे आर कॉल्ड द मॉथ्स, क्योंकि वो हमेशा लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो लाइट के पास आते हैं. राइट. So beta, just read up to here till now. This is your homework to read page number 28 and 29. Rest of the part we will complete later. Okay. Thank you.